This video contains the topic, that is casualization of workforce, which is taken from the chapter employment, and this chapter is in class 12 syllabus, Indian economy. Alright, so first we have to understand the term casualization. As if I break this word, what do I get? I get a term casual. So in my previous videos you understood that there are two kinds of wage employment, casual and regular. You remember? Regular people, regular salary, और हमने दूसरा कौन सा पढ़ा? Casual. So दोनों में डिफरेंस भी देखा, एक फॉर्मल सेक्टर का पार्ट है, फॉर्मल में एक में रेगुलर सैलरीज मिलती हैं, all the benefits people enjoy, but in casual there is no such kind of benefit which is available. You remember? So फिर ये टर्म क्या है? कैजुअलाइजेशन. So इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम फॉर्मल सेक्टर से, या आप इसको ऐसे लिखिए रेगुलर से, क्योंकि हम वहाँ रेगुलर वर्ड यूज करते हैं, रेगुलर एंड कैजुअल. फॉर्मल को इनफॉर्मल के साथ यूज किया जाता है. जब हम रेगुलर जॉब से कैजुअल की तरफ मूव कर जाएं, उसे बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. यानी द वर्कफोर्स इन द कंट्री इज शिफ्टिंग फ्रॉम रेगुलर area, regular work area to casual. Why is it happening and why do people do that? ठीक? Maybe one of the reasons, अब देखिए कितने तरह के employment है. Self employment होता है, regular jobs होती हैं और casual jobs होती हैं. हम कहना चाहते हैं जो self employed और regular वाले ही कहाँ जा रहे हैं? Casualization हो रहा है, यानी they are moving towards casual jobs. Now why is it happening? पहले रेगुलर वालों को समझते हैं. रेगुलर के केस में बहुत सारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इंसान रेगुलर जॉब छोड़कर कैजुअल जॉब को नहीं लेता, ऑफ कोर्स. फिर कौन से लोग मूव करते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वालों को हम लिख सकते हैं. यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? आप एक एग्जाम्पल लीजिए. बिहार से लोग पंजाब मूव करते हैं इन सर्च ऑफ बेटर प्रोस्पेक्ट्स और जॉब्स, बेटर लाइवलीहुड, बेटर अर्निंग्स. So they come from Bihar to Punjab. Do you know these Biharis, when they come from Bihar, they do have space there. उनकी अपनी लैंड होती है. आपकी फैक्ट्रीज में आपने एनालाइज किया होगा कि जब ये हार्वेस्टिंग टाइम होता है, so what do? They take off and they go to their villages. क्यों? Because वहाँ पर जो उन्होंने क्रॉप लगाई है वो फिर काट कर अपना वो उसको सेल करके, इसे मैनेज करके, then they come back here. इसका मतलब they were self-employed. They were working for themselves. Why have they come here? Because that's a risky business, है ना? So वहाँ वो क्या करते हैं? अपनी rest of the family they leave it there so that they can take care of all those activities. And whenever they are needed, they will leave and they will go and do the basic things जो भी उनकी important है वो करके फिर वो वापस आ जाते हैं. Now this term, when they are moving from self-employed to, या बहुत सारे लोग सेल कराते हैं, बहुत सारे लोग लैंड को जो है जिसको हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कहते हैं वो दूसरों को दे आते हैं लीज पर. सो और वापस यहाँ आकर अपना फैक्ट्रीज में जॉब करते हैं, क्योंकि दे नो दैट डूइंग अ वर्क हियर इज गोइंग टू गिव देम अ परमानेंट इनकम थ्रू आउट द ईयर. बट इन एग्रीकल्चर बीइंग रिस्की बिजनेस और बीइंग देयर जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी नहीं है, so that is why they are moving from self-employed to casual. When they move from self-employed to casual, that term is known as casualization of workforce. Remember, this question is the very important. क्यों? Because paper में ये और जो next मैं record करूँगी formalization, ये दोनों में से कोई एक question आता है. Let's reach to your handouts. Question number 10. Okay, what are you supposed to write when this question comes? This question will come in 3 marks, 2 or 3. वैसे हमारे लिए 3 का ही होता है. The distribution of workforce in different status indicates that over the last 4 decades, 72 से 2012, people have moved from, ये लाइन आ गई बेटा, ये लिखनी है मीनिंग में. People have moved from self-employment and regular salary to casual wage workers. Scholars call the process of moving from self-employment and regular to casual work as casualization of workforce. याद रहेगा? This is what is the meaning.
पहले बेस बनाया, 10 डेकेड्स में ट्रेंड देखा गया है, लोग यहाँ से वहाँ मूव हो रहे हैं। रेगुलर सैलरीड में दे आर उनकी सैलरी, जो रेगुलर सैलरीड लोग हैं, अगर उनकी जॉब चली जाती है, if they lose their job, so what happens is they will move to they have no choice than to do casual job. So if someone has lost their job in regular company, so where will that person go? Of course that person will move to casual work. Okay, चलिए अब टेबल को एनालाइज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको ये टेबल याद करना है। हाँ, ये थोड़ा सा आपको इसको याद करना होगा। क्या क्या याद करना पड़ेगा, देखिए जरा। 72 का स्टेटस, ठीक, 1972 में राजे सेल्फ एम्प्लॉयड 61% लोग थे अप्रोक्सीमेटली। 2011-12 में कैन यू सी देयर इज अ फॉल इन दैट 52%, 10% क्लोज टू 10% से फॉल आ गया। ये लोग कहाँ गए होंगे, देखते हैं। रेगुलर सैलरी देखें, रेगुलर सैलरी तो नहीं हो गए, वो तो इंक्रीज हुए हैं। हाँ, कुछ यहाँ हो सकता है चले गए, क्योंकि 15% से 18 हो गए, 18%। सो मे बी वहां से मूव करके कुछ लोगों की परमानेंट, जैसे आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड, आई मे हैव गॉट अ जॉब समवेयर, सो आई जॉइंड, सो आई मूव फ्रॉम सेल्फ टू रेगुलर, बट वो रेशियो बहुत हाई नहीं है। रीचिंग टू कैजुअल वर्कर्स, यू कैन सी दैट 23 से सीधा 30% जॉब, 7% का जॉब। दैट मीन्स वो जो ऊपर से लोग फ्री हुए, कुछ परसेंटेज वो रेगुलर गए, लेकिन ज्यादा परसेंटेज कैजुअल गए। इसीलिए हम मेजॉरिटी को स्टडी करते हैं। इस टर्म को बोल दिया गया कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। आई एम श्योर यू अंडरस्टूड द पॉइंट। अब हम नीचे एक एक करके यही बातें जो हमने बोली हैं, इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, वो नीचे आपने लिख देना है। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या लिखा है, ऑल्दो self-employment continues to be the major employment provider, but its share declined from 61 to 52। तो आपने अपनी तरफ से क्या ऐड किया, हमें जानते हैं, हम आपको याद है पीछे हमने पढ़ा था 50 to 60% लोग इंडिया में जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। हम जानते हैं मेजर लोग उधर हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिक्लाइन देखा गया है, वो आपने टेबल। ये एनालिसिस आपको ऐसा भी पेपर आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि टेबल दे दिया जाए और पूछा जाए इसे एनालाइज करके बनाएं, तो भी आप ये टर्म यूज कीजिएगा। ओके, नाउ रेगुलर सैलरी पे आते हैं। इट्स शेयर हैज स्टैग्नेटेड एट अराउंड 18%। देयर इज अ मार्जिनल इंक्रीज फ्रॉम 15 से 18, 15 to 18 ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स। 4 डिकेड्स में ज्यादा चेंज नहीं आया। कैजुअल वर्कर, देयर शेयर हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 23 to 30%। All right, so this was all about casualization of workforce. I will record a new video for informalization so that आप दोनों terms को confuse ना करें। All right, stay connected, keep watching. Bye bye.